Hello, dear students. Once again, welcome back to the second session of our fifth standard English Literature, chapter number 6, Charlie's Daily Dose of Sunshine. In the previous session or video, I have completed the explanation part of the story. I hope you learn and understand it very well. Now, in this part, in the second session, or we can say second video, we will learn and I will try to explain you the question answers, exercise, grammatical exercise, comprehension, okay, vocabulary, all the exercise in this video or session. Before we start the second session, let's revise the first session in which we have completed the explanation of story. So let's have the summary of the story as revision. Yes, what is the summary? What is the whole story is about? The author was known for adopting animals who had no other shelter. One day in the park, someone asked her to take in a baby raven. The author felt that the bird would be saved only if she gave him a home. So she adopted the raven and named him Charlie. Charlie became beloved pet. The children in the author's neighborhood loved him and dug up worms for Charlie to eat. The author's dog, Jackie, helped her look after the adopted animals. Unlike other ravens, Charlie enjoyed a bath and afterwards would snuggle up to Jackie. He learned to imitate the author and would pretend to call Jackie in the author's voice. Jackie would come running, expecting food, but would be disappointed. Then Charlie would laugh at him and Jackie would refuse to play with him. Or Charlie would go near Jackie's precious pebble collection, which no one was supposed to touch, and pretend to pick up the pebbles. Jackie would come running angrily, but Charlie would fly away from his reach. It was their game. Charlie always stayed with the author. Even if he flew away with other ravens in the morning, he always returned home, and the children shouted Charlie's home. He was like a dose of sunshine in their lives. He thought the author too look at the bright side of things. So, dear students, this is the summary of the story Charlie's Daily Dose of Sunshine. सो हमारे जो ऑथर थे वो बहुत सारे ऑर्फन एनिमल्स को हम कह सकते कि घर पे एडॉप्ट करते थे, घर पे उनको टेक केयर करते थे. उसमें से एक दिन उन्होंने एक हम कह सकते कि बेबी रेवंस को एडॉप्ट किया, बिकॉज हम कह सकते कि वो बहुत ही छोटा था और ऑथर को ऐसा लगा कि अगर उसे घर नहीं दिया, शेल्टर नहीं दिया, तो वो मर जाएगा या मारा जाएगा. ओके, सो उनके घर के आने के बाद उन्हें उसका नाम दिया चार्ली. अब चार्ली है वो घर पे हम कह सकते बहुत अच्छी तरीके से वो सबके साथ घुल मिल जाता है, उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं. उनमें से उसका एक बेस्ट फ्रेंड बनता है. उनके जो ऑथर है उनका जो पैट डॉग होता है, नेम है जीके, उनके साथ वो खेलता है. फिर वो धीरे धीरे ऑथर की जो वॉइस उसे उसकी इमिटेट करता है, कॉपी करता है, और उसी हम कह सकते हैं उसी टेक्निक से वो डॉग के साथ खेलता भी है, उनके साथ प्ले गेम्स खेलते हैं. फिर वो पेबल के कलेक्शन होते हैं उसके साथ भी वो खेलता है, क्योंकि जो जेके होता है, जो पेट डॉग होता है, उसे वो जो पेबल्स है वो बहुत ही हम कह सकते कि अच्छे लगते हैं और वो किसी को टच करने नहीं देता है. लेकिन वो टच करने की या उसे हम कह सकते कि ले जाने की जो प्रिटेंड करता है, मतलब कि हम कह सकते ड्रामा करता है और वो डॉग के साथ खेलता है और वो बहुत हंसता भी है. तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि ऑथर ने ऐसा कहा है कि उसके आने के बाद उनके लाइफ में हर रोज़ डेली डोज आता है सनशाइन का. तो किसका है वो? चार्ली. यस, चार्लीज डेली डोज ऑफ सनशाइन, मतलब नई नई आशाएं, नए नए होप्स, वो सब कुछ. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल दिस स्टोरी ऑफ आवर चैप्टर नंबर 6, चार्लीज डेली डोज ऑफ सनशाइन. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्सचुअल exercises in which we have question answers, then we have vocabulary exercise, we have grammatical exercise, we have also pronunciation exercise, listening exercise, okay, dictionary work. So let's start the explanation of textual exercises. Starting with the comprehension exercise A,
in which we have question answers. So I have divided the question answers in two categories, the short question answers and long question answers. Starting with the first short question answers. What did the man at the park tell the author? So the man at the park told the author that the raven was an orphan. He asked if she would take the bird home. Then second, why did the author bring the raven home? The author took the raven home because she realized that it might be the only chance for the raven to survive. ओके उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो उन्हें घर नहीं लाएंगे रेवन को, छोटे से बर्ड को, तो वो बच नहीं पाएगा. ओके वो हम कह सकते हैं कि आगे नहीं बढ़ पाएगा. दैट्स वाई उन्होंने ऐसा लगा तो वो उनको घर लेके आए. नाउ थर्ड शॉर्ट आंसर. हाउ डिड द चिल्ड्रन फील अबाउट चार्ली? What did they do for him? As children of the neighborhood loved Charlie, they dug up worms for him and fed him. They watched for him every evening, shouting Charlie's home when he returned at sunset. आजू बाजू के घर के आजू बाजू के नेबरहुड के जो बच्चे थे उन चार्ली को बहुत ही प्रेम करते थे, प्यार करते थे. उनके लिए वो बहुत ही हम कह सकते कि अब फ्रेंड जैसा बन गया था. वो उसके लिए जो वर्म्स होते, जो कीड़े थे, उन्हें हम कह सकते हैं कि डग करके बाहर निकालते थे और उन्हें खिलाते थे. जब भी हर शाम को अगर वो उसका जो रिटर्निंग टाइम होता था तब बाहर जाके वो कोरस में शाउटिंग भी करते थे, चार्लीज होम, चार्लीज होम. सो दैट्स हाउ दिस ऑल चिल्ड्रंस ओके फील अबाउट चार्ली. स्टार्टिंग विद द लॉन्ग आंसर्स. फर्स्ट वन, व्हाट गेम डिड चार्ली एंड जेके ऑफन प्ले? The game they often played was that Charlie would take pebbles from Jack's precious collection. When Jack ran at him, he would fly away and sit on the branch of the tree, laughing loudly. Okay? जो वो खेल खेलता था किसके साथ? जेके के साथ. वो बहुत ही फनी था. ओके उसे टीजिंग गेम भी हम कहेंगे कि वो टीज करता था उसे. ओके किसी न किसी अलग अलग बहाने से ओके वो उसे टीज करता था. और जो पेबल का कलेक्शन होता था जीके के पास, उससे लेके वो उसे बहुत ज़्यादा टीज करता था. ओके जैसे कि वो प्रिटेंड करता कि वो उसके पेबल्स कलेक्शन को ले रहा है. ओके स्टोल मतलब चोरी कर रहा है. देन सेकंड वन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ली एंड जीके? गिव एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेन योर आंसर. जीके एंड चार्ली हैड अ लविंग एंड प्लेफुल रिलेशनशिप. आफ्टर चार्ली हैड हिज बाथ, Jackie would allow him to snuggle with him. Charlie would then sleep between Jackie's paws. Charlie would sometimes call out to Jackie, imitating the author's voice. And when Jackie came running in expectation, Charlie would give his loud belly laugh. Charlie would also tease Jackie by pretending as if he was taking pebbles from Jackie's precious collection. तो जो रिलेशनशिप था चार्ली और जेके के बीच में वो बहुत ही हम कह सकते हैं यूनिक था. कि एक जो डॉग है और एक हम कह सकते कि बर्ड है. डॉग और बर्ड का हम बहुत कम हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे फ्रेंडली रिलेशन देखते हैं, लेकिन हमारे स्टोरी में हम कहेंगे कि जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही यूनिक था. हम कह सकते उनके बीच में जो रिलेशनशिप थी फ्रेंडशिप की वो बहुत ही स्ट्रांग थी. ओके चार्ली हर टाइम हम कह सकते थे कि जेके के साथ टीजिंग गेम खेलते थे. उनके साथ अगर उसे बात लिया तो वो अपनी हम कह सकते कि जो ठंडी है वो मिटाने के लिए वो जेके के पॉज के बीच में वो स्नगल करता था. मतलब कि वो वार्म कंडीशन के अंदर वो अच्छा सिक्योर फील महसूस करता था. ओके तो ये थी चार्ली और जेके के बीच की रिलेशनशिप. दिस आर दी ऑल दी क्वेश्चन आंसर शॉर्ट एंड लॉन्ग इन आवर चैप्टर. गोइंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज बी. उसमें हमें थोड़ा ऐसा दिया है कि मेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्ली एंड जेके विद द एडजेक्टिव्स. अब एडजेक्टिव है जो ये सेकंड कॉलम में दिए है उसके साथ उनके जो चार्ली और जेके के उसके हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन दिया कि वो कैसे थे. ओके एडजेक्टिव से मतलब इस सेंटेंसेस से हमें उनके एडजेक्टिव्स को सिलेक्ट करना है. फर्स्ट वन विद द चार्ली. चार्ली नेवर लेफ्ट अस, तो वो होता है लॉयल. यस दैट इज द लॉयल. देन After his bath, Charlie would sleep between Jack's paws, so that is lovable. Third, he would imitate me, that is playful. Okay, imitate करना मतलब जो कॉपी करते हैं ना वो हम कह सकते हैं थोड़ा खेलने जैसा होता है. ओके थोड़ा फनी रहता है. Then JK and
had a pebble collection which he did not allow anyone to touch. ओके, सो अब ये जो आंसर से वो आपको, मैंने आपको यहाँ पे आंसर नहीं दिया क्योंकि आप फिर जो पहला वाला है उसके जैसे जैसे आप यहाँ पे उसका आंसर सिर्फ गैस कर सकते हैं. ओके, आई विल गिव द आंसर इन दैट ग्रुप. ओके, जो ग्रुप में हम आएगी उसमें हम देख आंसर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये आंसर देखने हैं कि व्हाट वुड बी द आंसर. जेके हैड अ पेबल कलेक्शन, यस, विच ही डिड नॉट अलाउ एनी वन टू टच. तो यहाँ पे जेके है, ये पेबल के लिए उसका जो हम कह सकते हैं कि मालिकाना हक होता है, तो उसे हम क्या कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे. यस, प्लीज रिमेंबर दैट इज पजेसिव. सो सेकंड फर्स्ट आंसर इज पजेसिव. देन जेके एंड चार्ली वेर वेरी गुड फ्रेंड्स. थिंक ऑफ दैट वन. Yes, here very easy answer, that is friendly. Okay, very good friends, so friendly. Then third, he had looked after quite a few abundant kittens and ducklings. So ये जो हम कह सकते हैं look after जो होता है, मतलब कि जो ध्यान रखना होता है, उसे हम कहते हैं to take care. तो यहाँ पे उसका जो एडजेक्टिव होता है वो आता है caring. Okay, थर्ड का आंसर है caring. So yes, I did not give the answer of this one because I want to guess you the answers. I hope you all have guess the right answer. Yes, after completing the comprehension exercise A and B, the next exercise is of vocabulary, in which we have a verb that look, and look has different words that make its phrases. ये जो verb है उस look उसके साथ different words join करने से phrases बना है, जैसे कि look after, look into, look down, look forward, look up. सो ऑल दिस फ्रेजेज हैव देयर मीनिंग्स. सबकी अपनी अपनी मीनिंग्स है. यस, विदाउट मीनिंग्स वी कैन से इट इज़ नॉट यूजफुल एट ऑल, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल. तो लुक आफ्टर, लुक इनटू, इन सब का अलग अलग मीनिंग निकलता है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, लुक आफ्टर, टू मेक श्योर दैट समवन और समथिंग इज सेफ. लुक इनटू मीन्स टू फाइंड आउट मोर अबाउट समथिंग, उसके अंदर झांकना, सब कुछ हम कह सकते हैं कि पूछ पाछ करना, उसे कहते हैं लुक इनटू. लुक डाउन मतलब टू थिंक प्रॉपरली पुअरली अबाउट समवन और समथिंग, किसी के बारे में हम कह सकते कि हम तो थिंक पुअरली अबाउट समवन और समथिंग, कि किसी भी बारे में हम कह सकते कि नीचा, हम कह सकते कि सोचना थोड़ा. ओके, पुअरली सोचना. ओके, दैट इज लुक डाउन. लुक फॉरवर्ड का मतलब टू फील हैप्पी और एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. ओके, अभी होना है लेकिन वो होने वाला है, तो उसके लिए आप लुक फॉरवर्ड होते हैं, मतलब उसका इंतजार करते हैं. ओके, दैट इज द लुक फॉरवर्ड. लेकिन अच्छा, ओके, फील हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. लुक अप मतलब टू रिस्पेक्ट और एडमायर समवन. ओके, लुक अप का मतलब होता है कि किसी की हम कहते हैं कि रिस्पेक्ट करना और एडमायर करना. ओके, एडमायर भी करना. नाउ वी हैव एक्सरसाइज ऑन द प्रीवियस टेबल इन विच वी हैव द स्टेटमेंट्स एंड वी हैव टू मैच द स्टेटमेंट विद दैट क्वेश्चंस विद कॉलम ए एंड बी. फर्स्ट वन, माई मदर इज अ काइंड एंड my mother is kind, brave and hard working woman. So which kind of question, or we can say the answer from column B. So that is I look up to, yes, I look up to her. यहाँ पे जो look के साथ के जो हमारे phrases है वो कॉलम बी में है, उसमें से हमें जो स्टेटमेंट दिए है ए कॉलम में से उसमें से चूज करना है. तो जो मदर है वो काइंड है, ब्रेव है, तो उसमें कौन सा आएगा. यस, लुक अप टू हर. देन सेकंड वन, thieves broke into our neighbor's flat last night. That is the answer is C. The police are looking into the matter. अब जो चोर घुस आए थे हमारे नेबर के फ्लैट में, तो अब पुलिस है उनकी तहकीकात करती है, लुकिंग इनटू द मैटर. ओके, दैट वुड बी द आंसर. थर्ड वन, द समर हॉलीडेज आर ऑलमोस्ट हियर. मतलब अब जो वैकेशन है वो आ रहा है, तो उसका जो बेस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होगा. बी होगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग राजस्थान विथ माई फैमिली. अब जो वैकेशन आने वाला है, ओके, जो अब चीज़ आने वाली है, तो उसके बारे में आप क्या सोच रहे थे कि उस वैकेशन में मैं राजस्थान में जाऊंगा फैमिली के साथ. फोर्थ वन, वी आर गोइंग टू दार्जिलिंग फॉर अ फ्यू डेज. अब दार्जिलिंग जा रहे हैं, तो यस, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू लुक आफ्टर आवर पेट. तो आप अपने नेबर को पूछते कि यह आपके लिए पॉसिबल है कि आप कुछ दिन के लिए मेरा जो पेट है, ओके, पालतू जो एनिमल है उसकी देखभाल करेंगे. ओके, लुक आफ्टर का मतलब उसकी देखभाल करना, टेक केयर करना. Then last one, we should treat everyone with respect. Its answer is D. We should not look down on people just because they are different from us. लुक डाउन का मतलब होता है कि जो पुअरली हम किसी के बारे में सोचते हैं, मतलब हम क्या कहते हैं नीचा सोचना. ओके, वो नहीं करना है. सो दिस आर दी आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज फ्रॉम ऑफ द वोकेबुलरी एक्सरसाइज.
Going forward with the listening exercise, read the sentences, then listen to piece about ravens and choose the correct answers. रेवन जो बर्ड्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है. और रेवन इज अ ब्लैंक बर्ड, दैट इज अ फेयरली लार्ज बर्ड. ravens are blank, so they are omnivorous. Third, the shape of ravens claw, yes please remember, claw helps it perch on tall surfaces. मतलब उनके जो पंजे होते हैं, ओके, क्लॉ, तो वो उन्हें बहुत हेल्प करते हैं किसी भी सरफेसिस में उसे टिकाए रखने के लिए, खड़े रखने के लिए. ओके, ravens like to collect shiny objects. Yes, which objects? Shiny objects. This is a very simple and very easy listening activity or exercise. Then we have dictionary work. In dictionary work we have again met the following kind of question, that we have to match the A, or we can say sentences, meaningful sentences with the answers in B. जो B में हमें जो वर्ड्स दिए उनके आंसर्स जो है उसके स्टेटमेंट्स के साथ ए है उन्हें हमें मैच करना है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी रीड द इंस्ट्रक्शन. Look up the words given in the column B in the dictionary. Match them to the meanings given in column A. Then write meaningful sentences with each of the words in your notebook. अगर ये एक्सरसाइज जो है डिक्शनरी की है तो आपके पास डिक्शनरी हो तो आपको उसको साथ में लेके ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो. लेकिन मैं आपको यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ अगर आपके पास एक डिक्शनरी ना हो तो, क्योंकि जो बी कॉलम में जितने भी सारे वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स ए कॉलम में हैं. ओके, तो आप ये सारे वर्ड्स अगर डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो आपको उसके सारे मीनिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगे. तो ये आप अपने आप ही कर सकते हैं. बट हियर आई एम गोइंग टू जस्ट स्पीक द आंसर्स. नंबर 1, समथिंग इंपॉर्टेंट दैट शुड बी यूज्ड केयरफुली. सो द आंसर इज प्रीशियस. जिसकी हमें बहुत अच्छे से देखभाल करनी है, टेक केयर करनी है और कीमती है तो उसे हम कहेंगे इंपॉर्टेंट है तो हम कहेंगे प्रीशियस. ओके, दैट इज द वर्ड. सेकंड, से फर्मली दैट यू विल नॉट डू समथिंग. किसी भी चीज़ ना करने की आपके हम कह सकते हैं मक्कमता से मना करना, तो उसे कहते हैं रिफ्यूज़. ओके, यस, याद रखना ये वर्ड रिफ्यूज़. थर्ड वन, टू एक्ट इन ऑर्डर टू हैव फन. एक्ट ऐसा करना कि जिससे हम कह सकते हैं कि फन निकलता हो. ओके, किसी ना किसी हम कह सकते हैं कॉमेडी निकलती है. तो इज टू प्रिटेंड, उसका मतलब होता है कि प्रिटेंड करना. ओके, सच में ऐसा नहीं करना लेकिन ऐसे करने का नाटक करना, उसे कहते हैं प्रिटेंड करना. फोर्थ, ग्रेट हैप्पीनेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रेट हैप्पीनेस इज डिलाइट. ओके, डिलाइट का मतलब भी होता है ग्रेट हैप्पीनेस. फिफ्थ वन, अनहैप्पी एंड वरीड बिकॉज समथिंग बैड हैज़ हैपन. आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो गया इसलिए आप अनहैप्पी है और उदास है, हम कह सकते हैं वरीड भी है. सो दैट इज द आंसर इज अपसेट. उदास होना, अपसेट हो जाना क्योंकि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है. ओके, सो दीज आर द आंसर्स ऑफ डिक्शनरी स्किल. गोइंग फॉरवर्ड टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ ग्रामर. Now dear students, this grammar exercise is very important in this chapter because it is also the part of our chapter explanation of terminal 1 examination or syllabus. This is the same exercise in which we have completed the last chapter of our first terminal examination English grammar syllabus, and that is a chapter number 13. Yes, please remember present perfect tense. ये जो present perfect tense है उसका ही हम कहेंगे कि ये एक पार्ट है. दूसरा ही कि उसमें हमें जो वर्ब्स फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल उसका वर्ब का फॉर्म यूज़ करना है विथ हैज़ एंड हैव. लेकिन यहाँ पे हैज़ और हैव का यूज़ इतना हमें ज़्यादा पूछा नहीं, लेकिन फिर भी जो रिपीटेशन है वो करना पड़ेगा. मतलब कि जो हमने पहला भी पढ़ा था वो अभी हमें वापस रिवाइज करना पड़ेगा. यस, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन वॉच दैट वीडियो. ओके, शुरू से लेकर अंत तक भी देख लेना चैप्टर नंबर 13 का इंग्लिश ग्रामर. That is a part of our first terminal syllabus. That is with the title present perfect tense. And ये जो पूरी एक्सरसाइज है उसके ऊपर ही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर ही है. ओके, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, कि जो पास्ट की इवेंट मतलब जो इवेंट जो पास्ट हो गई है मतलब पूरी हो गई है उसकी जो हम कहते हैं कि रिलेशन है वो प्रेजेंट के साथ है अभी भी, तो उसे हम कहेंगे कि यस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब इस टेंस का जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का जो उसका पैटर्न है, मतलब कि उसका सेंटेंस पैटर्न है, जर्नल पैटर्न है, वो ये है. याद रखिए फिर से, फर्स्ट कम सब्जेक्ट प्लस वी हैव टू यूज़ हैज़ और हैव. ओके, ऑफ टू बीज फॉर्म, टू बी के हेल्पिंग फॉर्म जो हैज़ और हैव में से कोई एक यूज़ करेंगे, प्लस V3 फॉर्म. याद रखना V3 फॉर्म को मैं बार बार कहूँगा, V3 फॉर्म दैट इज द जस्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. V1 form is the base form, V2 form is the simple past form, and V3 form is the past participle form of the verb.
एंड प्लस ऑब्जेक्ट। V3 फॉर्म यूज़ करने के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट. This is the sentence pattern of our present perfect tense, and here the exercise is totally depend on that tense, and we have completed that one in our just that kind of that chapter number 13. Let's revise the same thing again. Here the sentences are given. The author has taken many injured animals and birds home. The children have learned to love Charlie. तो यहाँ पे जो दोनों एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें से जो टेकन और लर्न जो वर्ड्स है वो अलग तरीके से उन्होंने कलर किया है, तो वो वर्ब्स के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. टेक का बन गया है टेकन, लर्न का बन गया है लर्नड. ओके, सो जो पीछे हम ईडी लगाते हैं तो हम कह सकते दूसरे हम कह सकते हैं कि जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें भी डिफरेंस है. ओके, आपको याद होगा कि वर्ब नाम का जो चैप्टर था, तो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि जो रेगुलर फॉर्म होते हैं मतलब कि जो तीनों फॉर्म्स होते हैं उसके सेम होते हैं. V1 V2 V3 जो है, तो V2 और V3 फॉर्म उसका सेम फॉर्मेशन से होता है, जबकि इरेगुलर वर्ब्स में V1 फॉर्म V2 फॉर्म और V3 फॉर्म अलग अलग होते हैं. उसमें कोई हम कह सकते हैं कि कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो होता नहीं, तो उन्हें कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स. सो हियर वी हैव टू लर्न दैट which are the V1 V2 and V3 forms of the different verbs. बहुत सारे वर्ब्स जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको उस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में तब भी मैंने आपको और लाइव सेशन में भी एडवाइस दी थी कि आपको बाज़ार से अगर प्रैक्टिस करनी है ओके ज़्यादा, और मैं कहूँगा कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है वर्ब्स के बारे में, तो आपको वर्ब फॉर्म्स नाम की किताब मिलती है. प्लीज़ रिमेंबर वर्ब फॉर्म्स, देयर इज़ अ बुक. ओके, टोटली डिपेंड ऑन दी वर्ब फॉर्म्स. और वर्ब फॉर्म्स 3 नहीं है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि देर आर नॉट ओनली 3 वर्ब फॉर्म्स, देर आर टोटल 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, स्टार्टिंग विथ V1 फॉर्म बेस फॉर्म, V2 फॉर्म सिंपल पास्ट फॉर्म, V3 फॉर्म, V3 का होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, V4 फॉर्म जिसे हम कहेंगे IS और IES वाला फॉर्म, ओके, जो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के पीछे लगाते हैं. देन वी हैव प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे V5 फॉर्म भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं वर्ब प्लस ING. याद रखना वर्ब प्लस ING. टेक का बन जाता है टेकिंग, लर्न का बन जाता है लर्निंग. ओके, जो एग्जांपल दिए वो. तो V1 से लेके V5 तक के सारे फॉर्म्स हम कह सकते हैं कि लर्न करने बहुत ईजी है. तो आप अगर अपनी प्रैक्टिस और अच्छी करने चाहते हैं वर्ब्स के फॉर्म के ऊपर की, तो आप एक बुक बाहर से खरीद सकते हैं जिसका वर्ब फॉर्म्स नाम की बुक से, उसमें बहुत सारे डेली लाइफ के वर्ब्स और उसके वर्ब फॉर्म्स आपको दिए गए हैं फॉर योर प्रैक्टिस ओनली. अगर आपको प्रैक्टिस करनी है वर्ब फॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि वर्ब्स ही है जिसके ऊपर हम कहेंगे कि पूरे जो टेंसेस है वो डिपेंड है. ओके, उसकी जो कंडीशंस है ओके वो सब उस पर सिचुएशन डिपेंड करती है वर्ब फॉर्म्स के ऊपर ही. देन यस, स्टार्टिंग विद दैट एक्सप्लेनेशन पार्ट, द वर्ड्स टेकन एंड लर्न आर द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द टेक एंड लर्न. टेक और लर्न के वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. The past participle form of a verb is used in the present perfect tense. Yes, it is used in the present perfect tense. We have another 2 examples. These are, Rasi has acted in many films. My sister has cleaned this room. अब दोनों जगह पे हैज़ यूज़ हुआ है. यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट नहीं है कि हैज़ है कि नहीं है, लेकिन एज अ टेंस पार्ट और इसका जो जर्नल फॉर्म होता है सेंटेंस का, उसके लिए मुझे समझाना पड़ेगा कि हैज़ कहाँ आएगा और हैव कहाँ आएगा. सो प्लीज़ रिमेंबर हैज़ विल कम इन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ही शी इट कैटेगरी. ओके, ही में सारे हम कहेंगे कि मेल पर्सनस, सी में सारे फीमेल पर्सनस, और इट कैटेगरी में हम कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स. सो जो राशि है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. यहाँ पे जो सिस्टर है वो भी हम कहेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हैज़ प्लस V3 फॉर्म. एक्ट का बनता है एक्टेड, क्लीन का बनता है क्लीन्ड. सो V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. We usually form the past participle by adding ed to the verb, like in the case of the past form of the verb. हम बेसिकली V3 फॉर्म के लिए ed वर्ब के पीछे लगाते हैं, लेकिन कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके पीछे कुछ ed ऐसा कुछ लगता नहीं, उनकी जो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन है वो अलग ही होती है, टोटल किसी रूल रेगुलेशन से अलग होती है.
बट इन द केस ऑफ सम वर्ब्स वी यूज न्यू वर्ड्स। ये जो न्यू वर्ड्स है वो इरेगुलर वर्ब्स हैं, याद रखना, इरेगुलर वर्ब्स एंड रेगुलर वर्ब्स। इट बिकम ईटन, ब्रिंग बिकम ब्रॉट, होल्ड बिकम हेल्ड, ओके, स्विंग बिकम स्वंग, ओके, सिंग बिकम सेंग। तो ये सारी बहुत सारे दूसरे हम कह सकते हैं कि इरेगुलर फॉर्म के वर्ब हैं जिनमें ईडी पीछे नहीं लगता, याद रखना, ईडी, ओके, वी डिडंट ऐड एनी काइंड ऑफ सफिक्स ईडी, ओके, एट एंड ऑफ द वर्ब। वी ऐड डिफरेंट वर्ब्स एंड देयर इज नो पैटर्न, नो रूल्स रेगुलेशन, वो इरेगुलर वर्ब्स हैं। तो ये सारी जो वर्ब्स के आपको प्रैक्टिस करनी हो तो इसलिए मैंने आपको पहले सजेस्ट किया कि वर्ब फॉर्म्स नाम की आपकी किताब लेंगे, उसमें रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर सारे वर्ब्स की, उसमें सारे V1 V2 V3 फॉर्म आपको मिल जाएंगे। देन स्टार्टिंग विद दी यस एक्सरसाइज, वेरी इजी वन। ये जो सेम एक्सरसाइज हमने चैप्टर नंबर 13 में भी कंप्लीट की थी, लेकिन ये सेम हम कहेंगे कि एज अ पार्ट ऑफ आवर टेक्सुअल एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू कंडक्ट इट। फर्स्ट वन, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ब है उनके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमें यूज़ करने हैं। हाँ, हियर दे हैव यूज ऑलरेडी हैव एंड हैज़, जहाँ पे हैव और हैज़ उन्होंने ऑलरेडी यूज़ किया है, हमें सिर्फ उसका V3 फॉर्म यूज़ करना है। फर्स्ट वन, आई हैव फिनिश्ड reading this book so you can read it now. Second one, my parents have taken our cat to the vet this morning. Take become taken. She has decided to study Hindi. Decide become decided. You have forgotten to bring our book again. Forget become forgotten. Fifth one, we have assembled in front of the principal's room for the fire drill. Assemble become assembled, ed. Sixth number, the rain has stopped. Stop become stopped. तो मैंने आपको तब भी कहा था चैप्टर नंबर 13 के एक्सप्लेनेशन में कि जब भी किसी वर्ब के पीछे कॉन्सोनेंट आता है लेकिन इसके आगे एक वॉवेल है तो याद रखना कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लास्ट लेटर है कॉन्सोनेंट है वो डबल होता है। ओके, यहाँ पे डबल पी हम यूज़ करेंगे। ओके, दूसरे भी एग्जांपल जो चैप्टर नंबर 13 में भी आपको दिए थे तो आपको वो याद भी रखना है। सो द रेन हैज़ स्टॉप्ड। एक्सरसाइज बी इज ऑफ अबाउट टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। चूज द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। यहाँ पे दो उसके जो फॉर्म दिए आइदर V1 V2 एंड V3, तो उन दोनों में से हमें किसी एक को मतलब V3 फॉर्म को चूज करना है क्योंकि यहाँ पे जो सारे जो सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज हुए तो वहाँ पे V3 फॉर्म ही यूज़ करना है। सो हैज़ सायरा ईटन ऑल द फूड ऑन द प्लेट। देन सेकंड, आई हैव written a poem for my teacher. Write become wrote, wrote become written. They have come here earlier than usual. Come, came, come. Okay. Have you seen my bicycle keys anywhere? Okay. So see become saw, saw become seen. The parrot has flown away from the cage. Fly become flew, flew become flown. तो ये सारे जो हाईलाइटेड वर्ड्स वर्ब्स हैं वो सारे V3 फॉर्म हैं, तो ये उनके करेक्ट आंसर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, ओके, फॉर द फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन एज द पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन वी हैव completed the present perfect tense, and here also as the we can say revision of it we have different exercises on it where to use the or which kind of or which V3 form is used for the different verbs in the present perfect tense. So I hope you again revise all the things about the present perfect tense in this grammar exercise of our literature chapter number 6, which is the part of our second terminal syllabus. So yes, I hope you have understood all the things and all the answers of these exercises. Okay, so yes, it is time to now stop our this session also. As I already completed in the first session the explanation part of chapter, and now in this session we have completed the explanation part of all the textual exercises. So yes, I hope you enjoy all both the sessions, and you have to write all these exercises means question answer and new words in your fair notebook and all other exercises in your textbook itself. So for the next session, yes, I have to go now. So it's thank you and goodbye.